Welcome back all of you. Today we are going to discuss another terminology words of accounting. We have already studied about 38 points. In last video we discussed about debtor, creditor, receivables, payables, bills receivables, payables, voucher and post. Now today we are going to discuss starts from discount. What is discount and which are the types of discount? So let's start. 39 point discount. Emergence of discount is from purchase sale. Many times from the total amount of purchase or sale as per conditions, certain amount is deducted and net amount is paid. The amount which is deducted from the total amount is known as discount. Now all of you are aware about discount. जो टोटल अमाउंट होती है उसमें से कुछ अमाउंट होते हैं डिडक्ट एंड द अमाउंट विच इज पेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ दिस अमाउंट इज कॉल्ड डिस्काउंट. Out of the total amount of purchase sale, the amount which is procured or deduct is known as discount. Purchase and sales में से जो भी अमाउंट डिडक्ट होती है टोटल अमाउंट में से वो डिडक्ट हुई अमाउंट को बोलते हैं डिस्काउंट. There are two main types of discount. First is trade discount and another is cash discount. What is trade discount? At the time of sales, a business person deducts certain percentage or amount from sales price. It is known as trade discount. अगर जो बिजनेसमैन होता है वो जहाँ से परचेस और सेल कर रहा है उस परचेस और सेल में से कुछ अमाउंट यानी कि कुछ परसेंटेज वो करता है माइनस और फिर अमाउंट पे करता है या तो रिसीव करता है. तो जो परसेंटेज जो प्रपोर्शन में अमाउंट डिडक्ट की गई हो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स. ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग में बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होती है. Assume that the goods worth ₹10,000 sold at 2% rate discount. 10,000 के goods sell to another person with 2% rate discount. So customer will pay 10,000 minus 2%. 2% of 10,000 is ₹200. यानी कि 10,000 में से 200 जो है वो है trade discount. Now customer will pay the money 10,000 minus 200 which is 9,800. 200 is trade discount. The amount will not recorded in any book. Trade discount की अकाउंटिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं होती है. कहीं पे भी इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता. सेल्स कितना रिकॉर्ड किया जाएगा? 9,800. तो ये हुआ ट्रेड डिस्काउंट. नाउ सेकंड इज कैश डिस्काउंट. To attract the customers with the purpose to receive quick collection of credit sales, the amount which is deducted from receivable amount is known as cash discount. अब कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए या तो क्विकली जो है अपना पेमेंट रिसीव करने के लिए बिजनेसमैन जो शार्प बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है? कैश डिस्काउंट की ऑफर निकालता है. वो बोलता है कि अगर आप 10 डेज में या तो फिर अभी कैश में पेमेंट कर दोगे तो आपको 2%, 3%, 5% तक हम डिस्काउंट देंगे. इससे क्या होगा? कस्टमर जल्दी से पेमेंट कर देंगे. वो इसमें उसकी लालच होगी डिस्काउंट की. कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स. कैश डिस्काउंट की बुक में रिकॉर्डिंग की जाती है. बुक में उसकी इफेक्ट दी जाती है. After deduction of trade discount, cash discount is determined as above stated. Example: if 200 discount is allowed on 9,800, customer would pay 9,600 to supplier. Thus, 200 will be treated as cash discount. This discount is allowed at the time of collection of cash. Thus, it is called cash discount. कैश डिस्काउंट मीन्स अगर कैश में पेमेंट मिली, कस्टमर कैश में पेमेंट करेगा तो ही उसको कैश डिस्काउंट दिया जाएगा. सो दिस इज द कैश डिस्काउंट. इट इज बेस्ड ऑन पेमेंट ऑफ कैश, सो इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. एंड कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्राइस आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट. द अमाउंट जो हमने पहले एग्जांपल लिया था 9,800
10,000 में से 2% क्रेडिट डिस्काउंट, फिर बचे 9800। 9800 के ऊपर 200 जो है हम कैश डिस्काउंट देंगे। तो कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। Another point is discount received and discount allowed. Discount received or discount allowed are cash discounts. These discounts is recorded in the book. Discount received is treated as income and discount allowed is treated as expenses. Discount received. When a businessman purchases goods and pays less amount which is not paid is called cash discount. जब भी कस्टमर परचेस करेगा, बिजनेसमैन परचेस करेगा, उसमें से जो अमाउंट उसको देनी है उससे कम देगा, उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड व्हिच इज इनकम फॉर बिजनेस। अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझ लें तो गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम रमीलाबेन एट 2% डिस्काउंट विल बी अलाउड if the amount is paid in 15 days. If ₹10,000 are paid to Ramilaben within 15 days, in this case, instead of 10,000, 9,800 after deduction of 2% or 10,000 will be paid. Now, 200 will be treated as discount received. This will be recorded in the book. Ramilaben के पास हमने purchase किए थे goods worth ₹10,000. Now, the condition was that if we pay the whole amount within 15 days, we can get 200. It means 2% discount on it. We paid the amount within 15 days, so we get discount of ₹200. So this is the discount received. हमें discount मिला, हमें कम पेमेंट करना पड़ा, तो this is discount received and this is income for business. Oppositely, discount allowed. When businessman sells goods and receives less amount which is not received is called discount allowed. This is the expense for business. ये जो है वो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस, क्योंकि हमने गुड सेल किया 15,000। अब अमाउंट अगर 10 डेज में मिल गई तो 2% हम डिस्काउंट देंगे। 10 डेज में अमाउंट मिल जाती है तो हम 2% कम अमाउंट देंगे, तो हमारे लिए ये क्या हुआ? एक्सपेंस। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट हमने दिया। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। Loss in the value of asset due to some reason. Depreciation is expense of business. Every year the value of asset is reduced by certain rate. Amount which is reduced is called as depreciation. Before making tax payment to the government, depreciation is deducted. Depreciation is non-cash expense of the business. अब depreciation means loss in the value of asset due to any reason. कुछ भी रीजन की वजह से असेट की प्राइस में डिक्रीज होता है, तो ये डिक्रीजिंग वैल्यू जो है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल, बिफोर 5 ईयर यू परचेज एक्टिवा, आफ्टर 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर द वैल्यू ऑफ एक्टिवा इज 60,000, आफ्टर 5 ईयर द वैल्यू ऑफ एक्टिवा इज नाउ you want to sell the Activa and the price will be 25,000. So ये जो है 25,000 क्या हो गया? रिड्यूस इन द प्राइस ऑफ एक्टिवा, so 25,000 इज डेप्रिसिएशन ऑफ 5 ईयर। तो एक साल का अगर हम डेप्रिसिएशन निकाले तो 5,000। तो दिस इज लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस बट नॉन कैश एक्सपेंस। कैश में पे नहीं करना पड़ता, लेकिन दिस इज द एक्सपेंस फॉर बिजनेस। Next is bad debt. When goods sold on credit by the business person to whom goods is sold is debtor for the business. अब bad debts क्या है? अगर क्रेडिट पे हम सेल करते हैं तो सामने वाला पर्सन हमारे लिए हो जाएगा डेटर। अब उसने हमें प्रॉमिस किया था कि आफ्टर 10 डेज हम आपको पेमेंट कर देंगे। आफ्टर 10 डेज वो पेमेंट नहीं करता, हम उसको फिर दोबारा से याद दिलाते हैं, फिर भी वो पेमेंट नहीं करता। अब तो ऐसे कोई चांस ही नहीं है कि वो हमें पेमेंट करेंगे। जो अमाउंट, जिस अमाउंट का वो पेमेंट नहीं करता, वो बिजनेस के लिए, हमारे लिए क्या हो जाएगी? बैड डेट। बैड यानी कि पेड यानी कि खराब, और डेट यानी कि जो डेट उसके ऊपर उसकी हमारे ऊपर लायबिलिटी थी हो। ये सिंपल मीनिंग है बैड डेट। बैड डेट यानी कि जो अब हमें रुपए नहीं मिलने वाले, हमारे लिए है लॉस, उसको बोलते हैं बैड डेट। डेटर जो भी अमाउंट पे नहीं करता उसको बोलते हैं बैड डेट। नेक्स्ट इज सोल्वेंट। अब
डेटर क्रिएट हुआ क्रेडिट सेल की वजह से। अब वो 10 डेज के बाद हमें पेमेंट कर देता है तो उस डेटर को बोलते हैं सोलवेंट डेटर। क्लियर, सोलवेंट यानी कि वो सोल्व कर दिया, उसने पेमेंट कर दिया, तो हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सोल्व हो गया। अनदर इज इंसॉल्वेंट, अब वो ऐसी कंडीशन में ही नहीं है कि वो पेमेंट कर पाए, तो उस डेटर को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्लियर। नेक्स्ट इज डेबिट क्रेडिट। There are two important words of accounting. Every transaction has two effects in double entry system, debit and credit. True and fair understanding of debit and credit is true and fair understanding of accounting. Left hand side is accounting is called debit side and right hand side is in accounting called credit side. Left hand side जो है उसको बोलते हैं डेबिट और राइट हैंड साइड को बोलते हैं क्रेडिट। सिंपल मीनिंग अभी आप इतना दिमाग में रखो, डेबिट क्रेडिट के बारे में डिटेल स्टडी पूरे अकाउंट में हम करने ही वाले हैं। इन शॉर्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। Any account to be debited means accounting treatment at debit side of account, treatment at left hand side, and any account to be credited means accounting treatment at credit side of account, it means at right hand side. उसके बाद है अकाउंट। अकाउंट मीन्स कोई भी पर्टिकुलर जो है खाता, हम बोलते हैं ना करियाने वाले की दुकान पे हमारा खाता चलता होता है, अगर पेमेंट हम कैश में नहीं करते, पूरे महीने का खाता हमारा वहाँ पे होता है, हमारा अकाउंट होता है। कुछ भी हम परचेस करने जाते हैं तो उस खाते में लिखवा के आते हैं, तो पर्टिकुलर एक पेज में ऊपर हमारा नाम और सारे हमने जितने भी ट्रांजेक्शन किए वो लिखा होता है, तो उसको वो पूरे पेज में जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है उसको बोलते हैं अकाउंट। बिजनेस ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू सर्टेन आइटम्स एंड पर्सन्स गुड take place frequently. These transactions may be debit side having debit effect, may be credit side having credit effect. Transaction pertaining to respective item or person is recorded at one place and from where the summary of transaction of that item or person can be obtained is called account. सारे ट्रांजेक्शन एक ही जगह पे रिकॉर्ड किए जाते हैं और पूरी समरी होती है उसको बोलते हैं अकाउंट। तो इस वीडियो में यहाँ तक, यहाँ पे हमारे जो 46 वर्ड थे सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आपको करना है सारे वर्ड्स रीड करो, समझो और फिर लिखो, सारे मीनिंग अपने बुक में लिखो। तब तक नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम और मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।